1639th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ. रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक. ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू मैम प्यूरिजेबल डाइपर्स फॉर चिल्ड्रन. कांट फॉरगेट टू थैंक त्वचा क्लिनिक फॉर स्किन हेयर एस्थेटिक्स एंड ऑल्सो स्टाइलिक्स, interiors and kitchens, wardrobes and kitchens, that to be specific. And can't forget to thank Pooja Shelke's Live Fit, which is helping a lot of women say bye to obesity. मेरी आज की जो मेहमान है, she is a chartered accountant, she is a chef, she is a food blogger, she is a wife, she is a daughter, she is a daughter-in-law, and most importantly, she is a woman of the year. Please welcome my guest today, Divya Mohta. Hi. Hi Raj. How are you, ma'am? कैसी हैं आप? Good, very good. सबसे पहले तो a big thank you to you that आप अपने फूड ब्लॉगिंग के टाइम से वक्त निकाल रही हैं और हमें इंटरव्यू दे रही हैं. ये फिलहाल मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला टाइम है. मैं 3:30 के बाद फूड ब्लॉगर हूँ. ओके, सो सबसे पहले वुड लाइक टू नो योर जर्नी, वे कहाँ से शुरू होती है ये? So Raj, before we start, I would really like to thank you and Parekh Jewellers for making this thing possible. And I've been seeing multiple episodes of Women of the Year. I was just dreaming, and sometime in my head, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कैटेगरी कभी ब्लॉगर कैटेगरी को भी इंक्लूड करे ना करे, पता नहीं. You should thank Mrs. Divya Nair for it. She recommended you. I will definitely meet and thank her and treat her with some good food. Great. Because that's the only thing that I do. I treat people and I host people with good food. Super. Please, मुंबईकर, मुंबईची मुलगी. मुंबईची मुलगी. हाँ, वहाँ से शुरू होता है ये. बिल्कुल. So I was 23 when I got married, born and brought up in Bombay. और 23 पे मेरी शादी हुई थी. Yes, quite early for this generation, but it used to happen in our generation. True. Millennials में इतना 23 was not a big deal to get married. Absolutely. So I got married and then I was a student that time. So I completed my CA finals after my marriage. So I did my classes and everything, and I took over with exams and everything, and I cleared my CA from Nagpur with all my family support and my mother-in-law sitting right there. So and that was the journey with it. And after clearing CA, I took a job for some time just for practice in a mid-sized firm in Nagpur. But I was not really very satisfied with the 9 to 5, 9 to 6, 9 to 10. CA का कोई टाइम नहीं होता. बिल्कुल सही बात है. तो I was not really very satisfied with that sort of a lifestyle also, because it was not giving me any sort of creative freedom or not giving me chances to explore things around. So I did that for the sake of experience, and then I started a small time investment banking company with my friend. So that's how I started and learned trading in shares and everything. So that was also going pretty well, but still that creative side of me was not getting explored at all. And I've been creative since childhood. Right. So I started my own clothes brand. तो क्लोथ्स ब्रांड शुरू तो कर लिया एंड चल रहा था काफी, 2-2.5 साल किया, लोगों को पसंद भी आ रहा था. आई यूज टू डू ऑफलाइन एग्जीबिशंस एंड इन Tier 1 cities, बिकॉज बॉम्बे का बेस काफी स्ट्रॉन्ग था मेरा. बिल्कुल. तो बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद ऐसे करके और स्टोर सप्लाईज कर रही थी. सो देन इवेंचुअली आई थॉट कि मैं ऑनलाइन जाऊंगी, बट उसके पहले कोविड हिट हो गया था. सो नाउ कम्स द कोविड जर्नी. तो कोविड हिट हो गया था एंड देन लाइक ऐसे बोलते ना, रनवे से बस टेक ऑफ करने का टाइम था ऑनलाइन मार्केट में वेंचर करने का, और सब बंद हो गया था. सो व्हाटएवर आई वाज डूइंग वाज नॉट वर्किंग आउट इन माय फेवर. ना शेयर ट्रेडिंग काम हो रही थी, ना कपड़ों का कुछ काम हो रहा था, ना लोगों की रिक्वायरमेंट थी. सडनली पूरी दुनिया मिनिमलिस्ट बन गई थी. उस टाइम किसी को किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी. So then I thought कि भाई अब क्या करना चाहिए, और खाली तो मैं बैठ नहीं सकती. जी. So that's like not in me to just sit idle. जी. So everybody like was cooking. तब cooking suddenly आ गया था in the picture. Right. Everybody was a home chef. And then all my friends, they knew I was very fond of cooking and hosting, because that for hobby's sake, and I love calling people home. जी.
और हाउस पार्टीज इज बीन अ थिंग इन नागपुर. तो क्योंकि वहाँ जगह बहुत कम है यहाँ पे एक्सप्लोर करने की. पहले थी, अब नहीं बोल सकते ये बात. जी बिल्कुल. पिछले 5 साल में सब कुछ बहुत बदल गया है. So that's how everybody used to, friends and family used to ask कि आज क्या बना रहे हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट, स्विगी, जोमेटो सब बंद था. So I used to cook रेस्टोरेंट के जो रेसिपीज है वो घर पे. So I was like चलो इस बहाने, मतलब और वैसे भी कुछ करने को नहीं था honestly. So I thought might as well just cook good food and eat good food. And that's how I started. So one fine day I was sitting with my husband and there was this mug cake recipe which was trending all over the Instagram. तो मैंने ऐसे ही मग केक बनाया, रात के 1:30-2 बजे के आसपास था. And that was like around just in the second week of lockdown, which is March 25th around. So तो उसने मतलब my husband only suggested कि इतना बनाती है, you click good pictures, why don't you, and everybody keeps asking you about कि क्या बनाया या कैसे बनाया, why don't you put it on YouTube? So I said यार YouTube में बहुत मेहनत है, वीडियोस बनाने पड़ते हैं, सब कुछ बनाना पड़ता है, मेरा इतनी मेहनत तो नहीं हो पाएगी और आता भी नहीं है. सच बात. पिक्चर्स ढंग के खींच लेती हूँ बट वीडियोस आर अनदर लेवल. So that is when, and then he's like, okay, then do it on Instagram. आजकल सब पिक्चर्स ही चलते हैं, तब रील्स का जमाना नहीं था, तो सिर्फ पिक्चर्स चलती थी. So I used to just cook, click good pictures, post it on Instagram और रेसिपी लिख देती थी. Right. And लोगों को 250 फ्रेंड्स थे खाली Instagram पे, तो किसी ने बोला कि तुम्हारा अकाउंट पब्लिक कर दो, make it a creators account. I said okay, so that other people can also see. Right. I was like, okay, I don't mind. क्या ही है, Instagram पे खाना ही तो डाल रही हूँ. बिल्कुल. So I did that. So after doing that, probably for 60 days, मैंने एक ये सीरीज शुरू किया था उसमें, cook restaurant style food at home. So I cooked like some 10 recipes from the famous restaurants of Bombay. एंड मैंने उसको रिक्रिएट किया था कि घर पे कैसे बना सकते हो आप विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इंग्रेडिएंट्स. सो वो शायद एक चैनल ने देख लिया विच वाज वेरी एस्टैब्लिश्ड ऑन इंस्टाग्राम विच इज गॉगल. सो वो था एंड समहाउ यू नो थिंग्स व्हेन दे आर मेंट टू बी दे जस्ट हैपन. सो वन ऑफ माय सिस्टर्स फ्रेंड वाज वर्किंग विद गॉगल. So my sister works in Google India. Okay. So she had a friend in Google. So she said कि इतना अच्छा बनाते हो, why don't you work for platforms? I was like इतने बड़े प्लेटफॉर्म जिनके 1 million फॉलोअर्स है, मुझे क्यों एंटरटेन करेंगे? बिल्कुल सही बात. 250 फॉलोअर्स है, शुरू होके 2 महीना भी नहीं हुआ है. And then she's like no, Yatish, you should approach. So I don't know, it just happened कि मैंने अप्रोच भी नहीं किया था, मेरे बस दिमाग में वो था. And suddenly in a day or two I get a call from Google that will you make recipe videos? And I was like I honestly don't know how to make videos because and I can't hire a videographer because of this peak COVID. घर में आना किसी का अलाउड नहीं है, कुछ नहीं है. So safety issues. मैंने बोला कुछ भी नहीं कर सकती मैं, वीडियो कैसे बनाऊंगी? Like they'll train you. The channel was very kind. Everything they taught me online, how to do it, how to shoot videos, everything. So so that gobble happened by chance. So initially I was like, चलो 100 दिन तक खाना बनाऊंगी, कोविड खत्म हो जाएगा, 100 recipes I'll post, I'll make this entire series. जुलाई अगस्त तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. कोविड 3 साल तक चल गया. बिल्कुल. So that's when gobble happened. It was just luck by chance, जो बोलते हैं वही था मेरे लिए. And then gobble happened. एंड गॉगल को देख के एंड आई वॉज वेरी श्योर कि चलो ये थोड़े टाइम तक कर लेंगे, क्लोथ ब्रांड पे वापस चल जाएंगे, शेयर मार्केट उड़ जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा. एंड लाइक विद द फ्लो जा रही थी. फिर गॉगल हुआ, मैं छोड़ने वाली थी 2-3 महीने बाद, मुझे कैडबरी इंडिया से कॉल आया था कि आप रेसिपी बना सकते हैं क्या जी. यार कैडबरी जैसा 200 साल पुराना मॉन्डेली ग्रुप का ब्रांड आप क्यों छोड़ोगे? तो मैंने बोला हाँ चलो करते हैं. पर उस दिन रियलाइज हुआ कि ब्रांड्स के साथ काम करना कितना डिफिकल्ट होता है. आई मीन दे आर सो स्पेसिफिक एंड ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है, बिकॉज आई एम नॉट अ मार्केटिंग स्टूडेंट, सो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस. सो एंड दे आर सो पर्टिकुलर एंड द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दे गेव मी, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ. So then I shot for Cadbury. Cadbury का product. They trained you in all basic areas. They taught me कि grid में भी खाना बीच में कैसे दिख सकता है. आप सोचो वहां से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई है. Oh my. And they were so patient.
like I will be forever thankful to Gobblegrams for this. कि वो बोलते हैं ना जीरो से स्क्रैच से मुझे सिखाया उन्होंने लाइट कैसे एडजस्ट करते हैं, यहाँ से शेडो नहीं आता है, ये नहीं आता है. तो आई विल बी रियली थैंकफुल टू देम. एंड ऑफकोर्स माई मदर इन लॉ, शी इज लाइक कि उन्होंने मुझे अब रोटी बेलनी है, वो कैमरा के सामने राउंड बेलनी है. तो शी यूज्ड टू नॉट स्लीप इन द आफ्टरनून. शी विल बी लाइक कि अरे इससे तो गोल बनेगी नहीं. तो you know, behind the scenes, that it has to be one person who's like constantly there. A support system. So I will like totally give that credit to her. She's like, हाँ इससे अब जैसे तलने वाला काम है, जो tedious काम होते हैं ना, वो हमारी जनरेशन में इतनी impatient है. बिल्कुल सही. मैं तो बहुत तो मुझसे वो होते थे बराबर. So she used to be like always there. अच्छा ये समोसा बनाना है, अच्छा पैटी बनाना है, अच्छा ये करना है, ग्रिल करना है, फ्राई करना है. So दिखाते तो आप कैमरा में 1 सेकंड के लिए हो, बट वो BTS पे पूरा काम चलता रहता है. So और वो BTS पे काम मेरी एक हाउस हेल्प पे वो और मेरी मदर इन लॉ, they used to be like just there for me. So you know, एक sense of motivation बना रहता है when your family supports. Absolutely. So for me, mental peace and family support, I think those two are the only goals in life. ये दो होते हैं ना तो आपके सारे गोल्स अचीवेबल हो जाते हैं. That's my opinion. So that's how, and then Gobble happened, and then post that Gobble में देख के दूसरे channels, when it's Times Now, Times of India का है food channel, Times Now Foodie. So they approached, उनको देख के there's this channel called Masala Box, they approached. NDTV Good Times का है, My Good Times करके Instagram पे channel, they approached me. And then you know, there was no looking back. मैं जब छोड़ती थी कि जब सोचती थी कि मैं छोड़ सकती हूँ ये, तब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती थी कि मुझे लगता था यार ये तो नहीं छोड़ना चाहिए. आई थिंक आई एम मेंट फॉर दिस. और अब मैं ट्रेन शेफ तो हूँ नहीं, तो जितना आता था उतना बना लिया. सो आई शॉट लाइक ओवर 400 recipes till now. Wow. In like wow. Yeah, and professional shoots. 400 recipes over that. And I'm not a trained chef. So मुझे, but I am very fond of exploring food. So whatever I go and try outside, I make sure कि मेरे घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं या हस्बैंड मम्मी, सबको कुछ ना कुछ घर बना के टेस्ट करो. और ये मेरे को मेरी मॉम से आया. शी इज, आई मीन, अगर शी कैन बी दैट दलाल लेवल. शी इज एक्सट्रीमली गुड एट कुकिंग. सो उसको बोलते हैं ना, वो बस आ ही जाता है. सही बात है. जीन्स में. सो आई नेवर लर्न कुकिंग. I didn't even know तुअर दाल उड़द दाल में डिफरेंस when I got married. But you know, it's just that कि वो अपने आप होता है. And इतनी फ्रीडम मिली मुझे यहाँ पर इन लॉज के साथ कि मुझे कभी ऐसा सोचना नहीं पड़ा और ऐसा कभी डर नहीं लगा अरे ये गलत हो गया तो क्या. They're like so accepting about everything. So वो था ना, अगर इंसान डर जाए या उसे सपोर्ट नहीं मिले कहीं से तो वो इतना कर नहीं पाता. जी. बट इतना आपको बैकिंग होती है और इतना प्रिविलेज्ड हो कि आप अपने मन का कर सको. आई थिंक दैट्स योर बिगेस्ट वेल्थ. तो वो आई हैव बीन वेरी लकी विद इट. फूड ब्लॉगिंग पे हम बात करते हैं थोड़ा सा. फूड ब्लॉगिंग जनरली जो देखी जाती है वो, नो ऑफेंस टू एनी फूड ब्लॉगर, बट देन जिस तरीके से वो फूड ब्लॉगिंग की जाती है वैसे की जाती है. आप एक रेस्टोरेंट को अप्रोच करते हैं या एक कॉफी शॉप को अप्रोच करते हैं, आप उनके खाने को ऊपर से दिखाते हैं और फिर आप उसको रेकमेंड करते हैं यू शुड कम हियर एंड हैव इट. रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप्स की बिजनेस बढ़ते हैं. यू हैव टेकन आपका फूड ब्लॉगिंग एक अलग तरीके का है. आई मीन, वुड यू कोट योरसेल्फ एज अ फूड ब्लॉगर or you would you would quote yourself something different? I mean, I would quote myself neither as a food blogger nor as an influencer, nothing. I will quote myself as an explorer. Okay. I will say ऐसा कोई है नहीं term, but I will definitely call myself as an explorer. मुझे चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है. और मुझे लगता है जब आपके पास इतना God's been kind that you have been given so many chances and resources to explore. इट इज ओनली वे आउट कि आप एक्सप्लोर करो और आप सीखो लाइफ. क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता ऑनेस्टली. तो आई हैव बीन लाइक वेरी लकी एंड ग्रेटफुल कि आई गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर एज मच एज आई वांट. अभी भी मेरा यही रहता है एजेंडा कोई नए रेस्टोरेंट में जाने का. रेस्टोरेंट जाओ, वहां का खाना खाओ, उसमें आप कैसे चेंजेस करके घर पे बना सकते हो. क्योंकि शौक है मेरा वो जी. मतलब और घर वाले भी अब शौकिया बहुत हो गया है. So it is like I'm very accepting with taste. Thai बना लो, Chinese बना लो, Indian बना लो, street food बना लो. ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे यहाँ कोई नहीं खाता. तो मतलब they just want something new.
and I don't cook very frequently. You just mentioned that you also came with the clothing brand. Yeah, I did. High Street Mumbai was the name. क्या हुआ उसका? उसका वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि I did that for 2.5 years and I was like very happy, good recognition, good income, everything was like very good. So I thought कि चलो अब online करते हैं. Because online में क्या है, usually ऐसा होता है कि the return ratio on मतलब channels like Myntra and everything is very very high. Right. So कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे आप venture out करो शुरू में. And मेरा base finance का रहा है, so I am a very profit and loss person. Right. When I don't see that my time and my it should be fulfilling in terms of monetary terms also, Absolutely. in terms of fulfilling my mind also, keeping it engaged, and fulfilling in sense of satisfaction also. कि यार चलो मैंने कुछ किया है. Right. तो when you go to bed ये 3 चीजें बहुत important होती है मेरे लिए. So you have to be, and that amounts to mental peace ultimately. And I think वही ultimate goal है सबका. Mental peace. बिल्कुल. तो उससे ब्रेक ले लिया फिर? जी, उससे फिर मैंने ब्रेक ले लिया, बट अभी जैसे मैं आपको बताऊंगी कि so every year since 3 years I'm into blogging, so now I've started कि every year I will fund a startup. So because startups में ideas लोगों के पास बहुत होते हैं बट resources नहीं होते. So my agenda is, so right now Misfits करके एक clothes brand है, which is like text based t-shirts. So वो t-shirts मैं जैसे बेसिकली योर टी शर्ट रीड्स योर माइंड, वो वाला कॉन्सेप्ट है कि आपके दिमाग में जो है आप उसको पर्सनलाइज करा के अपने टी शर्ट बनाओ. ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ऐसा कुछ बहुत नया नहीं कर रहे हैं, बट द क्वालिटी दैट वी आर ऑफरिंग ऑनेस्टली इट्स मैंने जितने लोगों को गिफ्ट किया है या जितने लोगों ने खरीदा है, they have like I have had repeated customers for that and everything. So that is basically my brother is running that, and I am contributing to the promotion part of it. So Misfits, it's like the first segment of it is this personalized t-shirts. Later on we have few things in mind, but I want to definitely come up either with a clothes brand of my own or on a very big scale, or because I'm very fond of clothes, and I feel somehow it just completes everything. I've been a part of the social media since 3 years now. Me myself been doing this show, Raj Ki Baat. And what I've understood is that when you post a story or you post a reel or you post a video, and if you don't get views, it hurts. It doesn't, honestly. Okay. Okay, so I have a little different viewpoint. Of course, it matters to a lot of people, because but मैं ये चीज मैंने शुरू ही अपने लिए की. मैंने ना किसी ब्रांड के लिए की, ना अब ब्रांड्स आ रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं, मुझे और एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है. आई एम सुप्रीमली ग्रेटफुल टुवर्ड्स दैट. बट ऑनेस्टली मैं इंसान ही वो हूँ कि मुझे आउटसाइड वैलिडेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मेरी रील है वो 500 लोगों ने लाइक करी है, 50,000 लोगों तक पहुंच रही है, मैं खुश हूँ. 5,000 लोगों तक ही पहुंची है और 5 लोगों ने लाइक किया तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस इज हाउ आई बिल्ड माई कंटेंट एंड माई पेज. राइट. मुझे एक महीने में 50 कोलैब भी आते हैं लोगों को, मुझे 5 भी आएंगे तो मुझे चलेगा. एंड आई हैव बीन ऑनेस्टली वेरी सिलेक्टिव, क्योंकि मुझे हर काम भी नहीं करना है. आई हैव टू बिल्ड माई ओन नीश, and that is the reason I also got into menu tasting and menu curation. So a lot of cafes right now, it's basically a part of food consultation. So I'm working with a lot of brands जिनको अभी नागपुर में डेवलप करना है. जैसे मैंने 6 क्लाउड किचन यहाँ पे उनको मेन्यू बना के दिया है. आई रियली लाइक कि हर इंसान में जो टैलेंट है उसको आप किस तरीके से प्रमोट कर सको अपना इनपुट देके. दैट मैटर्स टू मी अ लॉट. But then, coming back to food bloggers, coming on to your regular traditional food blogging, do you appreciate them? Do you appreciate the content they're delivering? See, content, I'll say, I don't want to sound very diplomatic, I'll be very honest to you. Content सबका अलग अलग होता है. किसी को किसी का पसंद आएगा, किसी को किसी का पसंद आएगा. That's a personal choice. Okay, but I'll say कि this is a medium of advertisement. Right. So आप वो चीज एंडोर्स करिए जो चीज आप खुद बिलीव करते हैं. अगर मैं किसी कैफे के बारे में या रेस्टोरेंट के बारे में पोस्ट कर रही हूँ, मेरा ओनली एजेंडा है क्या मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को लेके यहाँ पे वापस जाऊंगी.
अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि मैं प्रमोट करूं. आप मेरे को दे दो आज 5,000 दे दो 10,000 दे दो प्रमोट करने के लिए, it doesn't really make sense to me. So that is. But that has happened in the past where people have recommended a restaurant, a coffee shop, and then people have went there and have had bad experiences. Of course, and plus I'll tell you, Raj, the thing is कि सबका टेस्ट बहुत अलग होता है. बिल्कुल. और फूड को लेके तो सच में बहुत अलग है. And people are very emotional, ना? Very emotional. मैं खुद हूँ. हाँ. मतलब मेरे लाइफ का आधा एजेंडा ही है कि मैं अच्छा खाना बनाऊँ, अच्छा खिलाऊँ, अच्छी पार्टी होस्ट करूँ. बस कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं. हाँ. जी. So, and अब ऐसा हो गया कि मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी मुझे लगता है मेरे जैसे हो गए, या वो वैसे ही थे, बट अब सब हम एक जैसे हो गए. जी. So it's kind of like that. But no offense, nothing. सबका अपना अपना फोटे होता है. किसी का स्ट्रीट फूड होता है, किसी का कैफेज होता है, किसी का रेस्टोरेंट्स होता है, किसी का फैशन होता है, किसी का कुछ भी होता है. मुझे ऐसा लगता है इफ यू डोंट बिलीव इन द ब्रांड, यू शुडंट टेक इट. मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा है. एंड इसलिए मैं मंथली आप देखेंगे मेरे पेज पे तो मैं पांच भी ज्यादा बोले 4 to 5 कोलैबोरेशन से ज्यादा मैं करती भी नहीं. बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एंड आई वॉन्ट टू शो माई पेज एज एन एक्सप्लोरर अगेन. मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं एक जैसे अभी एक मास्क रेस्टोरेंट है बॉम्बे में, इट्स वरुण तुतलानी इज द शेफ. आई हैड दिस एक्सपीरियंस विद हिम. इट्स एन एक्सपीरियंस बेस्ड डाइनिंग. तो मुझे वो चीजें करने का बहुत शौक है. क्योंकि यू नो व्हेन यू आर ग्रोइंग अप समवेयर, यू नो इट रियली इम्पैक्ट्स इन द एटमॉस्फेयर दैट यू हैव ग्रोन अप. Right. And I think you become your parents only end of the day. By the end. Yeah. True. So now I feel I'm the most connected to my parents. जो बोलते थे, जो करते थे, वही मैं करने लगी हूँ. बीच में of course there's a phase that you feel the generation gap and everything. But my dad is a lot into exploration. आप believe नहीं करेंगे. तब even in his struggling days, he used to have things like तब बॉम्बे में metro was the only multiplex back then. Right. So इतना होता था कि हम बड़े पापा से कार लेके फैमिली में 21 किलोमीटर दूर ड्राइव करके मेट्रो में मूवी देख रहे हैं. ये बात हुआ करती थी कि मतलब वो एक्सप्लोर करना है कि मल्टीप्लेक्स का एक्सपीरियंस कैसा होता है. सो यू नो आई हैव बीन ब्रॉट अप दैट वे. अभी कुछ भी हो गया, अब मुझे सोचती कि धीरे धीरे आप लाइफ में फाइनेंशियली सेटल होते रहते हैं, इमोशनली सेटल होते रहते हो, सब कुछ होता रहता है. एंड देन यू फील हाउ मच मोर कैन आई एक्सप्लोर. एब्सोल्युटली. तो मुझे बस वही है मेरा एजेंडा टू बी. और ऑनेस्टली मुझे ना लेना देना किसी से, ना मेरी लाइक्स, ना रीच, ना लोग, कुछ भी नहीं. ऑफ कोर्स आई हैव मेड few 4-5 really good friends here in blogging. They have been like very kind to me. They have been like guiding force for me. Would you like to name them? Okay, I don't mind naming them. So there's this Bhavik Mehta, DK sir. So kali I threw dinner pe, by the way. So he has been. So I just called him. I don't know, randomly. I just called him. I got to know he has a social media agency and everything. And वो social media agency थी भी नहीं, by the way. But मेरे को ऐसा पता चला था है उनके पास. मैंने बोला हाँ ब्लॉगिंग करनी है, फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं, रीच कैसे बढ़ती है. That was my first phone call to him. Right. And he's like, calm down. ये ऐसा नहीं होता है. And then our first phone call हम कल ही याद कर रहे थे. It went on for 1 hour 45 minutes. Oh my God. And a person like him, जो बहुत दिग्गज इंसान है F&B में, मतलब आई रिस्पेक्ट हिम लाइक द मोस्ट हियर. उन्होंने 1.5 घंटा मेरे लिए क्यों निकाला मुझे आज तक नहीं समझा. वो क्यों निकालेंगे मेरे लिए? एंड आई एम अ वेरी अननोन पर्सन टू हिम. हमने कभी ना मिले हैं. हमने probably he felt the fact that you are very interested in what you wanted to do. Extremely interested, very passionate, still very passionate about it. I think so. He's like, he spoke and I'm like, अरे ये तो Instagram का मतलब ही बदल गया मेरे लिए इनसे बात करके. Yeah, but bots भी बहुत होते हैं. You know, when it comes to followers, when it comes to, you know, people buy views, people buy a lot of people followers. People do that. I mean, it took Even me, I've seen it's been 3 years. I've been asking people, you know, एक करके follower इकट्ठा कर रहा हूँ, मुझे पता है. But I think it's so difficult. I feel that. है ना? So, what's your thought on that? So now I'll take the name of another guy who's helped me out throughout. So that's Gourmet Musafir, Sumedh Kanade, very famous food blogger in Nagpur. तो वो बंदे ने वो बोला कि डी जैसे भी चलता है, बहुत यंग है मुझसे. ही इज लाइक जस्ट 25, मुझे 10 साल छोटा ऑलमोस्ट. बट ही इज लाइक सो सॉर्टेड एंड ही नोज एवरीथिंग. गूगल है वो इंस्टाग्राम का, ऐसा आप बोल सकते हो. राइट. So that guy, he's like, बढ़ने दो, be patient, do this, do that. He's been like the guiding force for me through the journey.
एंड आई एम लाइक, वो होता है ना कि टैलेंट सब में होता है, आई ट्रूली बिलीव दैट, बट बीइंग एट द राइट प्लेस विद द राइट पर्सन विद द राइट रिसोर्सेज अराउंड यू, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइक। एब्सोल्युटली। तो आई गॉट वेरी लकी विद पीपल। आई ऑनेस्टली मेरे लाइफ में लोग बहुत अच्छे रहे। आई थिंक दैट्स लाइक द लाइक यू नो यू ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड विद गुड पीपल, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, क्योंकि मैंने जो भी किया लाइफ में लोग बहुत अच्छे मिले। बट काफी बार होता है ना किसी ने किसी को और आप जब इतने सक्सेस मतलब so called success. Success for me is very basic definition. Mental peace, family support, family love, and that's success for me. If you have like these 2-3 things in life, I mean, you're sorted. You sorted. Yeah, I'm a very sorted person that way. मेरे को ज़्यादा कुछ चीजें चाहिए नहीं होती है. So, marriage as an institution. Yeah. So, I'm sure your husband might have learned a lot from you when it comes to food blogging, Yes. CA, thoda sa, your business when it comes to, garments and things like that. So now, basically मुझे थर्ड नेम मोनिका लेना था. Okay. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे सवाल ही आपके going with the flow. Okay. तो एक्चुअली उसके बारे में वो थोड़ा ज्यादा बोलूंगी, मैं सोचा तो मैं लास्ट में बोल देती हूँ. So he's a very very wise person. Okay, when you come across, he's an introvert. He'll not talk too much, but he is so wise कि मतलब मेरे को कभी भी कोई भी confusion होता है ना, I just go to him and whatever he says is like I don't know why, क्योंकि वो सब चीजें जो क्वाइट इंसान होता है ना, वो सब चीजें बहुत ऑब्जर्व करता है, और मेरे से जो बोलता है ना वो बहुत गहराई से दिखता नहीं है चीजें. मुझे ना ऐसे बहुत रिपीटेड एक्सपीरियंसेस लगते हैं गहराई तक पहुंचने के लिए, उसको एक बार में सब कुछ पता चल जाता है. What have you learned from him? Patience, I'm trying. I think I'm 20-30% there, but वो अलग लेवल का पेशेंट इंसान है. मतलब I have never met a person who is as patient as him. एक सुमित फिर I think he gets it from his mom. तो वैसा है. So I've learned कि and he will do. He is the person who will say practice makes a man perfect. He is like the living example of it. So he's like, and मैं उल्टा हूँ, मैं ना हार्ड वर्क कर सकती हूँ. मतलब मैं जितना भी हार्ड वर्क कर रही हूँ, because of this pressure I feel I'm doing it. I'm a very easygoing person. Past 12 years there has been a lot of change in the city also. Of course. है ना? Yeah. तो जब आप आई थी 12 साल पहले नागपुर, तब के नागपुर में अब के नागपुर में क्या फर्क है? तब के नागपुर में जिंक होता था और तुली होता था और कुछ नहीं होता था. और जिंक बंद हो गया तो मुझे पर्सनल लेवल पे दुख हुआ. मैंने बोला अरे ये मेरा गो टू प्लेस रहा. तो दिल तोड़ दिया तुमने मेरा. सही में. एंड देन आई फाउंड कि मोगरा में जिंक का मेन्यू आ गया था. हाश, थैंक गॉड जिंक इज स्टिल अलाइव. एंड सो वहां सिर्फ ये दो चीजें होती थी. एक पाव भाजी वाला होता था, श्रीनाथ पाव भाजी वाले बहुत सारे होते थे. एंड दैट्स इट. एक जगह दाबेली खाने जाते थे और बॉम्बे सैंडविच तक नहीं मिलता था. Another reason I became a good cook was this only. Because खाने को इतना नहीं मिलता था यहाँ पर. And coming from Bombay, I had a lot of experience with food. And coming from and Bombay, you get good food. Good food, so much variety. So much variety. अभी भी मतलब मेरा एजेंडा. Value for money. मुझे लगता है. मुझे भी लगता है. हाँ, मुझे तो ये लगता है डेफिनेटली. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे नोट सेक्शन में ना ये जगह जानी है, ये जगह जानी है, ये जगह जानी है. हर बॉम्बे ट्रिप ऑलमोस्ट आई गो एवरी 1.5 month, बट मेरे पास लिस्ट ऑफ प्लेसेस होती है मेरे को कहाँ जाना है. बट हैव यू मेड अ फूड बकेट लिस्ट फॉर नागपुर? ऑफ कोर्स आई हैव. मैंने इनफैक्ट एक पोस्ट भी किया था दैट प्लेसेस आई लव इन नागपुर, एंड वो रील मतलब अनदर लेवल चल पड़ा. बिकॉज दैट्स माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. सो लाइक आई गो टू दिस भुट्टा प्लेस सिंस 12 years आई बीन गोइंग. मेरी एक फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था मुझे. सो जनरली आपको पता है फ्रेंड जो होती हैं वो अपनी फ्रेंड को किसी लड़के के साथ इंट्रोड्यूस करती है. कॉलेज लाइफ में लड़का ऑलरेडी नहीं कॉलेज लाइफ में आपको किसी ने भुट्टे वाले से इंट्रोड्यूस किया. हाउ अमेजिंग. इन लोग ने हाँ वो भुट्टे वाले भैया, आप बिलीव नहीं करोगे, उनका मैंने सिर्फ उन्होंने बोला कि बहुत प्यार से भुट्टा खिलाता है, और ना वो अकेले जो VNIT पे ना एकदम भुट्टे के कर्नल्स निकाल के देते हैं. ऐसा कोई है नहीं. मैंने बोला यार चलो ये नाम बता दीजिए अगर नाम पता. विष्णु भैया. ठीक. तो विष्णु भैया है, उनके पास प्लीज जाइए जो भी ये देख रहा है. मैंने रील भी पोस्ट की है उनके बारे में जो बहुत ही अच्छी. आपके पेज का नाम भी बताइए प्लीज. दिव्या मोहता ऑफिशियल. ओके, दिव्या मोहता ऑफिशियल. अब
क्योंकि you've enjoyed every bit of your professional life. I mean, when it comes to Yeah. your chartered accountancy, you've also enjoyed your garment With a lot of business. ups and downs, I'll be very honest. Yeah, I'm sure. हाँ. But It was not a दिव्या smooth मोहता road. की लाइफ में जनरली challenges क्या है? Challenges. हाँ. फिलहाल तो weight loss एक बहुत बड़ा challenge है because I've been around food all the time. Right. So my skin is also getting hampered. Mhm. And now that's like my next goal for next 6 months is to lose weight and just be खुद के लिए obviously. मैं जो करती हूँ खुद के लिए ही करती हूँ. तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसे देख के बोलेगा या कुछ करेगा. But मुझे खुद को लग रहा है that fitness now I'll have to concentrate क्योंकि now I'm in mid-30s. Absolutely. जब आप 21, 22, 25 के होते हो आपको फिटनेस पे इतना कुछ लगता नहीं है और वो एटीट्यूड से मैं 35 हो गई हूँ बट नाउ आई ओनली फील दैट आई रियली नीड टू वर्क ऑन माई फिटनेस सो दैट्स वन बिग चैलेंज सेकेंड चैलेंज एक्चुअली लाइफ इज बीइंग काइंड इतना कोई चैलेंजिंग था नहीं बट आई जस्ट फील आई एम अ वेरी लेट बैक पर्सन ऐसा लगेगा नहीं करियर हिस्ट्री देख के बट आई एम अ वेरी लेट बैक पर्सन बहुत प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करती हूँ मैं चीजों को तो ना मैं अभी 4-5 साल से मेरी एक हैबिट बन रखी है कि मैं हर चीज लिखती हूँ कि मुझे चलो रात की बात का 2 o'clock का शो है 3:30 तक रहेगा फिर 4 o'clock मुझे इससे मिलना है 5 o'clock तो आई एटलीस्ट डू थिंग्स You do your scheduling. आई डू माई स्केड्यूलिंग आप समझ लो मैं पूरे हफ्ते का स्केड्यूल संडे को बनाती हूँ Wow. क्यों बनाती हूँ क्योंकि अगर नहीं बनाऊंगी तो मैं कुछ नहीं करूंगी I'll just be like laying on the bed अरे फोन पे अरे इंस्टाग्राम पे अच्छा with वैसे time इंसान na, हो रहा है। with time there has been a lot of change in the society also and I Of really course. would like to know what's your thought about it. Yeah, very quickly. I would Society. like to know. Yeah. So Yeah. my question is, what's your thought on single mothers? सिंगल Mothers. ओके सिंगल मदर्स इज अ वेरी इनफैक्ट मदरहुड ही अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है आई लाइक आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर हाउ इट गोज हाउ थिंग्स गोज बट व्हाट आई एम सीइंग विद माय फ्रेंड्स राइट नाउ सो आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड कॉल्ड आदिति एंड शी इज लाइक द एपिटोम ऑफ मॉडर्न मदर फॉर मी so she will handle her work, she'll balance her social life, she'll balance her friends, her child, everything. Another friend of mine is Dimple. तो वो भी इतने अच्छे से करती है so these people are very inspiring and motivating how things are changed in the society. So Dimple also has her own cloud kitchen. She has 2 kids. She's my age. She's younger than me. But she manages things at home and everything so well. So अभी तक मुझे घर की इतनी responsibility honestly आई नहीं है क्योंकि मम्मी takes care of 90% of the things and उनका ऐसा था कि चलो हमने नहीं किया एटलीस्ट तुम करो तो What? Yeah. Sorry. so that means मैंने इतना घर की तरफ ठीक है मुझे ऑन एंड ऑफ गेस्ट आते हैं मैं अटेंड करती हूँ उतना ही रहा है तो डे टू डे होता है ग्रोसरी प्लानिंग कुक को क्या बोलना है क्या हाउस हेल्प आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट सच थिंग्स बिकॉज मम्मी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ इट बट मैं आई रियली एडमायर सो आई हैव बीन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई करियर माई सोशल लाइफ माई एवरीथिंग ट्रैवल एवरीथिंग बट वही मैं बोलती हूँ थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ पीपल वांट अ वेरी गुड बैलेंस इन देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ And these single mothers are doing it really well. So no, these two are not single mothers, but single mothers are also doing it. I honestly don't know a single mother, so I can't say much about their experiences. But अगर कोई कर रहा है but कोई कर रहा है तो भाई वो बहुत मानने लायक चीज है क्योंकि it takes a village to raise the child ऐसा मैंने सुना है और देखा भी है. What's your thought on child adoption? I'm totally up for it. I totally support that. अगर आप किसी चाइल्ड का सो एवरी ईयर ऑन माई बर्थडे आई मेक इट अ पॉइंट कि एटलीस्ट आई अडॉप्ट 10 चिल्ड्रन का एजुकेशन सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ अडॉप्टिंग आपको जरूरी नहीं कि आप अपने घर में ही लाना एक ही अडॉप्शन Supporting the education is also supporting education because I truly believe in it. So there is this Shiksha Foundation. Right. I've been doing that since I was 17. So of course the number has increased over the years. आप जैसे जैसे financially stable होते हो आप वैसे वैसे करना चाहते हो support. So Shiksha Foundation से I've been with them since a very very long time. What's your thought on the number of divorces which are increasing day by day? Okay, that's quite a question. So I feel सबको अपनी खुशी का हक है. अगर 2 लोग साथ में खुश नहीं है तो साथ में रह के कोई मतलब नहीं. Honestly,
मस्ट बी आप सोसाइटी के लिए निभाओगे, आप पेरेंट्स के लिए निभाओगे, एक पॉइंट के बाद आप खुद के लिए फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप करोगे और कुछ नहीं करते हो, वो फ्रस्ट्रेशन दूसरी चीजों में निकलता है। आप करियर वाइज इम्पैक्ट होते हो, आप हेल्थ वाइज इम्पैक्ट होते हो, और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो जाएगा ही आपका। मैं तो स्ट्रिक्टली मानना है, अगर आप अपने सेटअप में, अपने घर में या अपने फैमिली में या पार्टनर के साथ या दोस्तों के साथ खुश नहीं हो, आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही है, डिस्टेंस रखना बेटर है, कोई भी रिलेशनशिप हो। 5 people you can't live without. Quickly. Name. Okay. Of course, husband. Names. Okay. Sumit Mohta, Shrey Mohta, my brother, my mom, dad, and my mother-in-law. 5 friends you can't live without. Okay. Name them. So, Anandita, she's in US right now. This one, what do you say? Dimple, Aditi. There's another friend called Mithun. There is, अरे यार दोस्तों में मेरी बैंड बज रही है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ सब। और सब जो मेरे दोस्त हैं। हाँ, क्योंकि मैं इतना मार खाऊंगी सेशन का, क्योंकि सब देख रहे हैं। और ये हमारा नाम तूने लिया नहीं है। Okay. दोस्तों का तो नहीं लूंगी। This would be my last question. Okay. Second last question. What's the dream? क्या करना चाहती है? कहाँ तक पहुँचना चाहती है? What's the big plan? Big plan? मैं बोली ना, मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ, दैट वीज आई एम गोल ओरिएंटेड, बट आई हैव स्मॉल गोल्स। अल्टीमेट गोल और ड्रीम सबका होता है खुश रहना जिंदगी में। मुझे ऐसा लगता है तो आप छोटे छोटे गोल्स करते हो, छोटी छोटी गोल्स के बाद आपको अचीवमेंट की फीलिंग आती है और आप खुश होते हो। तो जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। डेस्टिनेशन, ये सब ऐसे फिलोसफिकल साउंड करेगा, बट आई ऑनेस्टली बिलीव दैट डेस्टिनेशन आपका भगवान तय करता है, जर्नी आप खुद तय करते हो। बिल्कुल। तो बेटर कॉन्सेंट्रेट ऑन द जर्नी विच इज इन योर हैंड, बाय कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स विच आर नॉट इन योर हैंड। सुपर। माय लास्ट क्वेश्चन, अगर एक जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, दिव्या सुमित मोहता, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? तो बेसिकली मेरा फेवरेट कोट जानना चाहते, बहुत सारे हैं तो यार, डिफिकल्ट कर देते हो आप राज, ये रैपिड फायर की बात नहीं हुई थी। बट एक कोट जिसपे आपका बिलीफ है, मेरा है कि लिव लाइफ एज इट इज रिग्ड इन योर फेवर। सो इट्स लाइक आप जिंदगी ऐसे जियो कि सब कुछ आपके फेवर में है, आप यही बिलीव करके जियो, तो ना सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। आप हर चीज को बहुत सीरियसली लेने लगते हो कि यार ये मेरा अच्छा नहीं हुआ या वैसा नहीं हुआ, तो भाई आप सोचते ही रह जाओगे, आप ओवर थिंकर ही बन के रह जाओगे। और मैं तो सोचती ही नहीं हूँ। तो अच्छा सोचो अच्छा होगा, अच्छा सोचो अच्छा होगा, नहीं भी अच्छा हुआ तो कुछ और अच्छा होगा। मेरे को लगता है लाइफ इज ऑलवेज 80%, आपको 100% कभी कुछ नहीं मिलेगा। वेदर इट्स योर पार्टनर, वेदर इट्स योर हाउस, वेदर इट्स योर फाइनेंसेस, वेदर इट्स योर ड्रीम्स, ट्रैवल, फ्रेंड्स, 100% कुछ नहीं होता लाइफ। आप अपना 100% दे सकते हो वो, बट वो आप ही दे सकते हो। उसमें 80%, लाइफ इज ऑल अबाउट 80%। अगर आपको 80% भी, इफ यू हैव अचीव्ड योर ड्रीम, बी हैप्पी। 80% देयर इन योर, मतलब कि 80% आपकी फैमिली खुश है आपसे, खुश रहो, बाकी 20% दिमाग भी मत लगाओ। आई एम लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। सुपर। आई थिंक आप ऐसी थी, ऐसी हैं और ऐसी रहेंगी, और आप हमें ऐसे ही इंस्पायर करते रहेंगे, है ना? थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट ऑन माय शो, एंड you're not just a women of the year for this year, but I wish you to be the women of the year for all the years coming. Wishing you all the very best, and I'm your new follower on your page. Oh, thank you so much. And so am I on yours. Thank you so much, and thank you for being my guest. सुपर। दिव्या मोहता मेरी आज की विमेन ऑफ द ईयर से मुलाकात हुई, बात हुई। दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात किसी ने बड़ा खूब लिखा है, और शायद इनके लिए परफेक्ट है कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। आप कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन आपकी जीत होगी, इसके ऊपर में कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश को कोई ना कोई अप्रिशिएट करेगा, सराहेगा, इसकी गारंटी जरूर है। जिंदा रहें। जय हिंद।